हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वेलकम टू द क्लास। और दिस इज फर्स्ट lecture, so I welcome you all for the new semester as well. So let's start something about operations management. Actually, what operations is doing a day-to-day activities जो आप लोग काम करते हो अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अपने काम करने के लिए, अपने ऑफिस के मामलात करने के लिए, फैक्ट्री के मामलात करने के लिए, वो हमारे ऑपरेशंस कहलाते हैं. So the chapter we're going to start is operations and productivity. We will see how we do operations in it, and how we can increase the productivity of our employees and the company as well. So here is the outline, what things we have to study in this. So we'll skip it because we're gonna study in detail, so leave it. Here are the learning objectives of your of the this chapter why we are studying it. First of all, it will help us in defining operations management. Then it will help us in explain the distinction between goods and services, explain the difference between production and productivity. Then we will study computer single factor productivity, computer multi-factor productivity, identify critical variables and enhancing. So basically this chapter starts with a case study. So this is a Hard Rock Cafe case study. This cafe was opened in 1971 and now they have 121 restaurants in over 40 countries. Uh, what they do actually is how many customers they serve per day is 3,500 plus customers per day. So we'll discuss its role of operation. So let's start actually with the chapter. So what the chapter says is what is operations management. Before going to start with the operations, we need to see production actually is. Production is the creation of goods and services. So production kya hai? Production is something in which we create something. Either it's a good or it's a service. So अगर let's say आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आप शर्ट्स बना रहे हो, ये आपकी प्रोडक्शन है. On the other side, what I'm doing in the class is giving a lecture. That is a production as well, but this is in services sector. So let's talk about the operations management. OM as a set of activities that creates value in form of goods and services by transforming inputs into outputs. So operations management kya hai? In short, an easy word. This is something in which we process inputs to have a useful outputs. So ये भी यही कहता है, if we go by the definition, is the set of activities that create values in form of goods and services by transforming inputs into outputs. इसमें आप क्या करते हो, अपने inputs को output में convert करते हो. पर कैसे convert करते हो, वो खुद ही तो नहीं हो जाती. तो उसके लिए हम जो activities perform करते हैं, जो हम जिससे उसकी वैल्यू क्रिएशन होती है, वो क्या होता है, प्रोसेस. उस प्रोसेस को ऑपरेशंस कहा जाता है. So let's see how we organize to produce goods and services के essential functions क्या हैं. The three essential functions हैं जी हमारे, वो क्या क्या हैं. Let's see, first one is the marketing, then production, then finance. तो अब इनको बारी बारी देख लेते हैं हम लोग क्या है. मार्केटिंग क्या करता है, बेसिकली इट जनरेट डिमांड. आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट करता है. तो बेसिकली प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट होगी तो प्रोडक्ट बिकेगी. इफ देयर इज नो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट देन वी कांट सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट. सो प्रोडक्शन और ऑपरेशंस क्या करते हैं. प्रोडक्शन का काम है सिंपल एज पर द वर्ड सेज, इट क्रिएट द प्रोडक्ट. इसका काम है प्रोडक्ट को बनाना. कैसे बनाना, ये एक अलग स्टोरी है, अलग चैप्टर है, इसको बाद में पढ़ेंगे. देन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग क्या कहते हैं. ट्रैक्स हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, पेज बिल्स, कलेक्ट्स द मनी. सो व्हाट इट एक्चुअली डू इज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग क्या करते हैं, ट्रैक्स हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रही है. उसके बाद उसके ये तो इनिशियल फाइनेंस आ गया. उसको अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम उसके बिल्स पे करते हैं, जो हमने रिसीवेबल से पैसे लेने होते हैं, जो लोगों को देने होते हैं, उनका हिसाब किताब रखना, ये भी उसके काम है. सो हियर इज द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो हमारे पास है. एक कमर्शियल बैंक की एग्जांपल है हमारे पास. इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग. तो इसकी ये दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. अब ये एक एयरलाइन का एक चार्ट है जिसको एज अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस.
So now let's come towards the question why we are studying the operations management. OM is one of the three major functions marketing, finance and operations of any organization. That's true. और OM के बारे में कहा जाता है कि ये एक सबसे important और critical function है किसी भी कंपनी का या डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी का. हम इसे क्यों पढ़ते हैं? वी वांट एंड नीड टू नो हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस. हमें पता होना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस की जा रही हैं. अगर गुड्स हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर सर्विसेज हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं. तो फिर हमें और भी पता चाहिए. वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेशन मैनेजर्स डू. वी नीड टू नो दैट द ऑपरेशन मैनेजर्स क्या काम करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं. फिर OMS इज सच ए कॉस्टली पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर पता नहीं होगा, इफ यू डोंट हैव द नो हाउ अबाउट इट, तो आपके लिए उसको मसला हो जाएगा मैनेज करना. बेसिकली ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन. आप एक एग्जांपल बता रहे हैं हम किस चीज़ को बेहतर करके अपनी जो है अपना प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं. So basically let's come to the actual thing, that is what operation managers do. ऑपरेशन मैनेजर्स क्या काम करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जी. सो बेसिकली कमिंग टू अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट मैनेजर्स डू. आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने HRM में, OB में, मैनेजमेंट में. ये आप 3 सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, इसमें हमने पढ़ा होगा बेसिकली के मैनेजर्स क्या काम करते हैं. 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, पढ़े होंगे आपने. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. कुछ लोग 4 पढ़ाते हैं, कुछ बुक्स 5 पढ़ाती हैं. तो दैट्स लाइक नॉट अ बिग डिबेट एक्चुअली. सो हर एक फंक्शन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. प्लानिंग में हम क्या करते हैं, वी प्लान अबाउट द थिंग्स, वी प्लान अबाउट द फंक्शंस कि हमने क्या करना है, कैसे करना है. लॉन्ग टर्म प्लान्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स भी हो सकते हैं, मिड टर्म प्लान्स भी हो सकते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इट मीन हाउ वी ऑर्गेनाइज आवर प्लान्स. हमने जो प्लान्स बनाए हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन फेज पे लेके जाना है. स्टाफिंग क्या करती है, स्टाफिंग से आप अपने जो स्टाफ से काम कैसे करवाना है, आपने अपने वर्क फोर्स को कैसे मैनेज करना है, अपने वर्क फोर्स की ट्रेनिंग कैसे करनी है आपने. लीडिंग इज लाइक हाउ एट द एंड हाउ विल सी द एंड रिजल्ट्स, कि उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, या जो उसमें तरीके हैं वो कैसे मैनेज होंगे. कंट्रोलिंग कम्स लाइक एट द एंड रिजल्ट्स को जब कंट्रोल करते हैं, जब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको रेक्टिफाई किया जाता है, उसमें कोई और मसले आ गए उसको प्रोडक्ट को रीडू किया जाता है, देखा जाता है प्रोसेस में प्रॉब्लम है या हमारी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है. देन कम्स टूवर्ड्स द 10 क्रिटिकल डिसीजंस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये भी आपको यहाँ पे से बताया जा रहा है कि कौन सा डिसीजन जो है वो किस चैप्टर से रिलेट करता है. अगर आप लोग जब ये लेक्चर सुनोगे आपको आइडिया हो जाएगा. हर डिसीजन इज रिलेटेड टू एनी टू चैप्टर इन योर बुक. So let's start with the 10 critical decisions. हम 10 critical decisions से start कर रहे हैं. The पहला है जी design of goods and services. So very first decision is design of goods and services. So what we need to know and do in this decision is हमें पता होना चाहिए what goods and services should we offer. पहली चीज़ कंपनी को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या चीज़ें ऑफर करनी हैं, ठीक है, कौन सी सर्विसेज और गुड ऑफर करनी है. फिर होना चाहिए हाउ शुड वी डिज़ाइन दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. पहले फेज में हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि हमने कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करनी है, मीन्स हमारी प्रोडक्ट रेंज क्या क्या हो सकती है. और फिर द सेकेंड स्टेप इज हाउ शुड वी डिज़ाइन दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि हम उन्हें डिज़ाइन कैसे करेंगे. द मेन थिंग व्हाट आई वुड ऑलवेज से इन माई क्लास इज दैट हमें वही काम करना चाहिए जो हम बेस्ट कर सकते हैं. अगर आप लोग मुझे बोलो कि मैं जाके एल्गोरिथम्स पढ़ा दूँ या अरबिक लैंग्वेज पढ़ा दूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. वो मुझे पढ़ानी नहीं आती है, मैं पढ़ा नहीं सकता, दैट्स नॉट माई डोमेन एक्चुअली. इसमें भी ऐसे ही होता है. कंपनी को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले देखना है कि वो क्या बेस्ट कर सकती है. जो वो बेस्ट कर सकती है उसको वो करना चाहिए, जो नहीं कर सकती है उसको नहीं करना चाहिए. जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने क्या करना, द नेक्स्ट फेज आता है कि जी अब आपने इन चीज़ों को डिज़ाइन कैसे करना है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को. फिर आता है जी नेक्स्ट डिसीजन इज अबाउट मैनेजिंग क्वालिटी. हमें प्रोडक्ट का पता चल गया हमने क्या बनानी है, हमें सर्विस का पता चल गया हमने क्या देनी है. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी गोना मैनेज इट्स क्वालिटी. तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, हाउ डू वी डिफाइन क्वालिटी, और देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी. तो वापस आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, हाउ डू वी डिफाइन क्वालिटी. इट्स वेरी सिंपल. एवरीवन हैव हिज और हर ओन डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी. हर कंपनी के लिए क्वालिटी की डेफिनेशन डिफरेंट है, उनकी अपनी है. हर एक के लिए क्वालिटी की एक्सेप्टेबिलिटी लेवल डिफरेंट है. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ फॉर मी द क्वालिटी इज 99%.
अगर हमारी कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस हो 99% ठीक है तो फॉर मी इट इज़ क्वालिटी ओरिएंटेड। अगर 99% नहीं है, इफ इट्स ए 98% फिर भी क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है, इसका मतलब है फिर भी हमारी क्वालिटी में डेफिशिएंसी आ रही है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी। क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिंपल इज दैट द क्वालिटी मैनेजर, द क्वालिटी डिपार्टमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। अब अगर हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, फॉर इंस्टेंस अभी ये कंपनी 85% क्वालिटी को एक्सेप्ट करती है और 15% कहती है जी हमारी वेस्टेज आनी आनी है। अगर वो अपना प्लांट इम्प्रूव करते हैं या अपना प्रोसेस बेहतर करते हैं तो उस 15% वेस्टेज को अगर वो 95% पे ले जाते हैं, 5% वेस्टेज पे ले आते हैं, तो अगर 10% एक्स्ट्रा ऐड किया वो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। उसमें कॉस्ट तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगनी है उनकी, लेकिन प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा कैसे हो जाएगा कि पहले वो 10% वेस्टेज में जा रहा था, अब वही 10% पैसों में ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकेगी तो उसका रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिजाइन। अब एज पर द what says process and capacity design means क्या, what process and what capacity will these products require। आपने जो याद करो पहले इनिशियल फेज में जो आपने डिज़ाइन प्लान किया था, जो प्रोडक्ट सर्विस आपने देनी है, तो अब उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस चाहिए और क्या क्या कैपेसिटी चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। we need to know that what are the processes and what kind of capacity we need to have for that, ताकि ऐसा ना हो कि हम वो काम तो शुरू कर लें लेकिन हमारी कैपेसिटी ना हो शुरू करने की। then it says what equipment and technology is necessary for these processes। अब जब आपने अपने प्रोसेसेस डिफाइन कर लिए, अपनी कैपेसिटी डिफाइन कर ली, फिर आपको पता चाहिए अब उस प्रोसेस को करने के लिए जाहिर बात है हमें इक्विपमेंट चाहिए होगा, हमें मशीनरी चाहिए होगी, हमें प्लांट चाहिए होगा। तो उसका इसमें हम डिसाइड करेंगे हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए जो नेसेसरी है हमारे लिए इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए। देन लोकेशन स्ट्रेटजी की बात करता है। तो अब लोकेशन में क्या है, वेयर शुड यू पुट द फैसिलिटी, मीन्स आप जो फैक्ट्री लगाने जा रहे हो वो आपने किधर बनानी है। बड़े सिंपल सी बात की जाती है कि हमेशा फैक्ट्री बनाते हुए या कोई भी प्लांट लगाते हुए ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नंबर वन इज़ कि आप वो प्लांट वहाँ पे लगा रहे हो जहाँ से आपको क्या इजीली लेबर मिल जाएगी, क्या आपको इजीली इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट आई मीन दैट क्या आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हमने बना के फैक्ट्री में या वेयर हाउस में स्टोर कर लेनी है। आफ्टर ऑल हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, तो सेल करने के लिए उसको मार्केट में जाना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑन वट क्राइटेरिया शुड बी बेस्ड द लोकेशन डिसीजन। और फिर हम डिसाइड करेंगे हम किस क्राइटेरिया के ऊपर अपनी लोकेशन जो है वो डिसीजन कर रहे हैं। क्या हम चीप लेबर की तरफ जा रहे हैं, क्या हम लोग इजी एक्सेस ऑफ द मार्केट की तरफ जा रहे हैं, क्या हम इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की तरफ जा रहे हैं, क्या हम इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। जो भी डिसीजन हम करेंगे सो दैट लोकेशन स्ट्रेटजी मस्ट बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डिसीजन। द नेक्स्ट इज लेआउट स्ट्रेटजी। हाउ शुड वी अरेंज द फैसिलिटी। अब लेआउट आपने देखा होगा जैसे जब मैपिंग की जाती है, आप कैसे लेआउट डिज़ाइन करते हो, क्या चीज़ें करते हो। तो वो कहता है जी सिंपल, हाउ शुड वी अरेंज द फैसिलिटी, आप फैसिलिटी को कैसे अरेंज करोगे। हाउ लार्ज मस्ट द फैसिलिटी बी टू मीट आवर प्लान। अब हमें देखना है कि एक तो उसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, मीन्स आपका कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे आएगा, कौन सी मशीन कहाँ पे लगी, ये डिसाइड करेंगे। सेकेंडली हमें डिसाइड करना है हाउ लार्ज मस्ट द फैसिलिटी बी टू मीट आवर प्लान, हमारी ये जो फैसिलिटी है कितनी लार्ज होनी चाहिए कि हमारे प्लान्स को मीट कर सके। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने आज एक फैक्ट्री लगा ली है, 2 साल बाद आप उसको दोबारा एक्सपेंशन की तरफ चले जाओ, फिर 2 साल बाद और एक्सपेंशन की तरफ चले जाओ। सो दिस इज अ बेसिकली लॉन्ग टर्म डिसीजन। आप एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करते हो, आप कोई भी काम करते हो, कोई चीज़ बनाते हो, उसका आपका प्लान लॉन्ग टर्म का होता है। सो इट्स नॉट रॉन्ग इफ आई से आप 15-20 साल के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर कहता है जी ह्यूमन रिसोर्स एंड जॉब डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। हाउ डू वी प्रोवाइड अ रीजनेबल वर्क एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स एचआर का क्या काम है, सबसे पहला काम ये है कि मेक योर वर्क एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस रीजनेबल फॉर द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन फील कंफर्टेबल वर्किंग विद योर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ना हो उनको ऑर्गेनाइजेशन में आते हुए प्रॉब्लम होती हो, वो आपके साथ काम करने को तैयार ना होते हो। देन हाउ मच कैन वी एक्सपेक्ट आवर एम्प्लॉइज टू प्रोड्यूस। और फिर उनके हम जो प्रोडक्टिविटी है, उनके टारगेट्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितना प्रोड्यूस करेंगे, ये हमें डिसाइड करना है। अब ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ना कोई बेंचमार्क बनाना पड़ेगा। अब जो बेंचमार्क होगा वो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर देगा कि ये इनका मिनिमम स्टैंडर्ड है, so हमने इसको फॉलो करना है। और प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी, उस मिनिमम से ऊपर जाएंगे सारे एम्प्लॉयज, मिनिमम तो हर एक को अचीव करना ही पड़ेगा। फिर जी द नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहा है। सो सप्लाई चेन क्या होती है बेसिकली,
सप्लाई चेन होता है कि आपने प्रोडक्ट मार्केट में कैसे पहुंचानी है, आपने खुद बनानी है, उसका रॉ मटेरियल परचेज करना है या मार्केट से लेना है। सो इसमें आपके शुड बी मेक और बाय दिस कंपोनेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो नहीं करनी है या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो नहीं करनी है, इसकी तरफ हमें ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। कोई ऐसा पार्ट क्या हम खुद बना लें, वो सस्ता पड़ेगा, जिससे हमारा प्रॉफिट बड़ा एबनॉर्मल आउट ऑफ द वे एक्सेप्शनल हो जाए और हमारी प्रोडक्ट भी इजीली प्राइस रेंज में आ जाए, जिसे लोग इजीली परचेज कर सकें। हु आर आवर सप्लायर्स एंड हाउ कैन इंटीग्रेट इनटू ई कॉमर्स प्रोग्राम। फिर हमें देखना है कि अब हमें अगर लेट्स से हमें कुछ चीज़ें लोगों से खरीदनी है तो हमारे सप्लायर्स कौन होंगे। अब जो भी सप्लायर्स हम पे कर रहे हैं हमें ये देखना है कि अब वो हमारे ई कॉमर्स सिस्टम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। क्या हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बार बार हम सप्लायर्स को पिंग करेंगे और वो हमें प्रोडक्ट दे के जाएंगे, या हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली हमारे ई कॉमर्स सिस्टम की एक्सेस मिल जाए उनको, और वो उस ई कॉमर्स सिस्टम को देखते हुए अपनी शिपमेंट्स को मैनेज कर लें। Then it says inventory, material requirement, planning and GIT. So now what we say is, अब इसमें हम तीन चार चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इन्वेंट्री है, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लानिंग एंड जीआईटी है। सो अब पहली चीज़ आपको इसमें डिसाइड करनी है, हाउ मच इन्वेंट्री ऑफ ईच आइटम शुड वी हैव। क्या हमें ऐसा करना है कि हम हर आइटम की कितनी कितनी क्वांटिटी अपने पास स्पेयर रख सकें, या इन्वेंट्री में कितना कितना स्टॉक रखना चाहिए, और दूसरा हम कब इसको रीऑर्डर करें। तो उसके लिए बेस्ट चल ये है, डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं डिफरेंट लेवल पे काम कर रही होती हैं, उनके क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। जो ऐसी कंपनी जिनका रॉ मटेरियल बहुत महंगा आता है, दे विल गो फॉर द जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम, जीआईटी। अब जस्ट इन टाइम क्या कहता है, वो मेक श्योर करता है यू वेन इन एन एग्रीमेंट विद योर सप्लायर दैट कि मैं आपसे कैश पे प्रोडक्ट लूंगा और इस फिक्स प्राइस पे लूंगा, लेकिन जब भी मेरी प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा यू आर बाउंड टू गिव मी विद इन स्पेकुलेटेड टाइम, जो भी डिसाइड करेंगे, ताकि उससे क्या हो, उसको कैश चला जाएगा और आपको उसका स्टॉक रख के अपने इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कहता है व्हेन डू वी री ऑर्डर, जो अगर आप एस जे में नहीं कर रहे, आप सिंपल इन्वेंटरी सिस्टम मैनेजमेंट कर रहे हो, तो वो जो आपने ईआरपी सिस्टम लर्न किया हुआ है उसमें आप एक एक पोर्टल बना के अपने सप्लायर्स को एक्सेस दे देते हो। तो इवेंचुअली क्या होता है, जब सप्लायर आपके पास स्टॉक शॉर्ट होने लगता है, वो खुद ही सप्लायर को पिंग कर देता है कि जी ये शिपमेंट अब रिक्वायर्ड है, ये मटेरियल अब हमें ज़रूरत है। तो वो ऑटोमेटिक उसका मिनिमम नंबर जो आप थ्रेशोल्ड लेवल पे जब पहुंचते हो तो वो रीफिल कर देते हैं उसको दोबारा से। सो द नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग। स्केजुलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग या स्केजुलिंग क्या होता है, दैट्स इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म। अब वो क्या है जी आपकी, क्या आप अपनी स्केजुलिंग शॉर्ट टर्म कर रहे हो या इंटरमीडिएट लेवल की कर रहे हो। आर वी बेटर ऑफ कीपिंग पीपल ऑन द पेरोल ड्यूरिंग द स्लो डाउन, विच इज जॉब डू वी परफॉर्म नेक्स्ट। अब स्केजुलिंग में बेसिकली क्या होता है, हम इसमें सेकंड पॉइंट से पहले स्टार्ट करते हैं। वी नीड टू नो दैट कि हमें नेक्स्ट क्या काम करना है। एक टास्क खत्म हुआ, एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो वी नीड टू नो व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस पे आपको काम करना है। अब वापस आते हैं पहले इस पे, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम जैसे आते हैं जिसमें बिजनेस स्लो हो जाता है। अब उस स्लो डाउन ऑफ बिजनेस में क्या करते हैं, वो कुछ कंपनीज देखती हैं कि अब हमारे लिए बेटर ऑफ क्या है, क्या अपने एम्प्लॉइज को हम फारिग कर दें, जैसे स्लोडन पीरियड खत्म हो तो दोबारा हायर कर लें, या अपने एम्प्लॉयज़ को होल्ड करें, उनको पे देते रहें, खुद अपने पेरोल पे रखें। या एक थर्ड ऑप्शन भी होती है, लोग अपने एम्प्लॉयज़ को आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स क्या कर देते हैं कि वो रहते हैं आपके पेरोल पे ही हैं, लेकिन दे आर वर्किंग विद सम अदर कंपनीज जहाँ पे आप उनको भेज दो। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा दोनों का होता है। अब फ़ायदा दोनों का क्या हो जाता है कि सिंपल इज़ दैट कि आप इन केस अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को आप ले ऑफ भी नहीं कर रहे हो और एम्प्लॉयज़ को भी सर्विस मिल रही है इन स्लो डाउन। नेक्स्ट इज़ द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की बात जब करते हैं, कहता है जी मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और मेंटेनेंस कब कब करनी चाहिए। पहली चीज़, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हर कंपनी में मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनीज में मेंटेनेंस करवाने के। ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं कि मेंटेनेंस कब कब होनी चाहिए। इसका भी बड़ा सिंपल सा रूल है, जैसे ही जो स्लो डाउन पीरियड आता है कंपनी से करती हैं, उस स्लो डाउन पीरियड में मेंटेनेंस स्टार्ट कर देती हैं ताकि लॉस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। सो ये आपने टेक्निकल डिसीजंस पढ़ लिए ना। नेक्स्ट मूव अब हम कर रहे हैं जी, वे आर द ओएम जॉब्स के आपकी ऑपरेशन मैनेजर की जॉब कहाँ कहाँ पाई जाती हैं या किस किस जगह पर उसकी जॉब होती है। प्लांट मैनेजर, ऑपरेशंस एनालिस्ट, क्विक क्वालिटी मैनेजर, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सप्लाई चेन मैनेजर एंड प्लानर, ये क्या हैं, यहाँ पे इनकी जॉब्स पाई जाती हैं ओएम से रिलेटेड। ठीक हो गया जी। बाकी दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन।
अब वही बातें हमें एक टैबलेट फॉर्म में बता रहा है, वे आर द ओएम जॉब्स, टेक्नोलॉजी, मेथड, फैसिलिटी, स्ट्रेटेजिक इशू, रिस्पांस टाइम, पीपल, टीम डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, क्वालिटी, कॉस्ट, इन्वेंटरी फॉर इम्प्लीमेंट। ये सारे आपके ऐसे सेक्टर्स हैं, या ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, या ऐसे टास्क हैं जहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर्स क्या करते हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ओके जी, सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं जी अब। इसको तीन फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज कहता है कॉस्ट फोकस, सेकंड कहता है क्वालिटी फोकस, और थर्ड कहता है कस्टमाइजेशन फोकस। अगर मैं बैकवर्ड स्टार्ट करूँ तो आजकल हम लोग जिस फेज में फॉल करते हैं, दैट इज़ कस्टमाइजेशन फोकस। अब कस्टमर की डिमांड होती है कि चीज़ों को कस्टमाइज किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोस्ट फोकस। हम पहले से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देखने में एक स्लाइड आपको लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे वो सारा कुछ आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आएगा, जो बाद में आप खुद पढ़ लेंगे। सो कॉस्ट फोकस की बात कर रहा है, कहता है जी अर्ली कॉन्सेप्ट। इफ यू टॉक अबाउट द अर्ली कॉन्सेप्ट 1776 से 1880 के एरा में, ये वो एरा था जब हम बात करते थे वी नीड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड लेबर। अब ये बात किसने की थी? स्मिथ बैबेज ने बात की थी कि आप क्या करो, अगर आपको अच्छी प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो आपका लेबर स्पेशलाइज होनी चाहिए। फिर क्या होगा आपके पास उसके बाद विटनी ने कहा इसी एरा में कि स्टैंडर्डाइज पार्ट्स की बात करो, कि आपकी जो मशीन के पार्ट्स ख़राब होते हैं, हम कहते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं है, तो उसमें हमें पार्ट्स को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारी प्रोडक्टिविटी में या मशीन की या प्लांट की एफिशिएंसी में इफेक्ट नहीं आएगा। फिर आते हैं जी साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा में आते हैं हम लोग। ये था 1880 से 1910 तक का एरा। सो अर्ली कॉन्सेप्ट वाला जो एरा था, ये ऑलमोस्ट मोर देन हमारे पास 100 ईयर से ज़्यादा चला था। सो जिसमें हम इस बात कर रहे थे। अब आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा में। इसमें हमने क्या बात की? 1880 से 1910 तक। इसमें हमने बात की कि यार ओके, वी आर डन विद द स्पेशलाइज्ड लेबर, वी आर डन विद द स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स, व्हाट नेक्स्ट कैन बी इम्प्रूव आवर क्वालिटी और मेक द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल गैंट चार्ट्स की बात की, ये गैंट ने की थी। अब गैंट चार्ट्स क्या होते हैं? ऐसे चार्ट्स होते हैं जो आपको एक्चुअल स्टेटस ऑफ प्रोडक्ट बता रहे होते हैं इन ग्राफिकल व्यू के। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट में इतना काम हो चुका है, यहाँ पे प्रोडक्ट इस वक्त खड़ी है। फिर बात की जी गिलबर्ट ने कहा जी मोशन एंड टाइम स्टडीज की बात की कि यार हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जाने में, मींस अपने अपने प्रोडक्ट का या अपने टास्क कंप्लीट करने में। जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें टाइम मोशन और टाइम मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने क्या कहा, क्यों ना हम लोग ऐसे करें कि हम लोग मोशन टाइम स्टडीज़ पे फोकस करें, हम इनकी मोशंस को मिनिमाइज करके इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। तो जितना अगर एम्प्लॉई आपका कम थकेगा, कम टायर्ड होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा। देन टेलर ने कहा जी प्रोसेस एनालिसिस शुरू कर देना चाहिए। और एरलैंग ने कहा क्यूइंग थ्योरी पे काम करना चाहिए हमें। अब देखो प्रोसेस एनालिसिस क्या कहता है? कहता है कि हमें अपने प्रोसेस के एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हम इसमें से कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे हो जिससे हम लोग कहें कि नहीं वी आर डन। हम अब एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे हम बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट बना रहे हैं, जहाँ पे हमारी वेस्टेज मिनिमम हो रही है। फिर कहता है जी क्यूइंग थ्योरी की बात की एरलैंग ने कि हमें क्यूज पे काम करना चाहिए। अब क्यूइंग थ्योरी का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट ऐसा नहीं है कि एक टास्क आया आप वो कर रहे हो, शायद दूसरा आ गया हम पहला से दूसरा शुरू कर दिया, फिर तीसरा आ गया हमने पहला भी छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया, हम तीसरा भी काम शुरू कर दिया। वो कहता है ऐसा नहीं है, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप काम करें और इसको कंप्लीट कर लें। देन बात करता है जी मैस प्रोडक्शन एरा की। अब देखो, अब हम लोग यहाँ तक पहुँचने से पहले हम क्या क्या कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात कर ली वी हैव ना स्पेशलाइज्ड लेबर्स, हमारी मशीन में स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स आते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन का जो स्टेटस है गैंट चार्ट से मॉनिटर करते हैं। हमने मोशन एंड टाइम स्टडीज करते हुए क्या किया, अपने एम्प्लॉइज की जो टायर्डनेस है उसे कम करने के लिए कोशिश की। हम प्रोसेस एनालिसिस की तरफ आ गए, हम क्यूइंग थ्योरी की तरफ भी हम चले गए। अब हमारे पास अब क्या रहेगा जिसकी वजह से हमारी अभी भी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और प्रॉफिट कम हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं मैस प्रोडक्शन एरा की। उन्होंने कहा जी मूविंग असेंबली लाइन पे आ जाओ। फोर्ड और सुनारसन ने कहा कि वी मस्ट मूव ऑन टू द मूविंग असेंबली लाइन। अब मूविंग असेंबली लाइन में क्या होता है कि आप एम्प्लॉय कहीं नहीं जाता, एक कन्वेयर बेल्ट पे चीज़ें चल रही होती हैं, वो एम्प्लॉइज के पास खुद आती जाती है, जैसे कंप्लीट होती हैं और नेक्स्ट में खुद ही चली जाती हैं। उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉइज का टाइम वेस्ट होता है वो भी बच गया।
अच्छा जी, अब ये भी बच गया, ठीक है, इससे भी हमने काम बेहतर कर लिया। अभी शुगर कहता है आप आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सैम्पलिंग किया करो, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करनी चाहिए हमें। अब सैम्पलिंग से क्या होगा? सैम्पलिंग से ये होगा कि हमारे जो एरर्स हैं, जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कम है या जो हमारा वेस्टेज हो रहा है, उसका पता चल जाएगा, उसे हम कंट्रोल कर सकेंगे। फिर जनाब हरीश ने कहा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे काम करना चाहिए। अगर हमें अपनी कॉस्ट पे फोकस करना है, हमने प्रोडक्ट सस्ती बनानी है, तो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे जाना चाहिए। मींस हमें मैक्सिमम बल्क क्वांटिटी में चीज़ें बनानी चाहिए ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाए। देन उसने कहा, हाजी ड्यू पॉइंट ने कहा, वी मस्ट मूव ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग, पर्ट एंड सीपीएम पे जाना चाहिए। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग, पर्ट एंड सीपीएम क्या है? पर्ट क्या है? प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक है। और सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। अब इससे आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट में जो आप काम कर रहे हो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर उसने कहा कि नेक्स्ट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पर काम करना चाहिए, कि ऐसा ना होता हो कि आप चीज़ों का वेट करते हो कि प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है, जब दोबारा आएगी फिर आए काम शुरू करेंगे। तो उसके लिए उसने कहा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आउट करनी चाहिए। अब ये सारा कुछ जो भी हमने पढ़ा, दैट वाज इन द कॉस्ट फोकस। इस सारे एरिया में हमारा फोकस क्या था? कि हमारी कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो जाए, हम अपनी कॉस्ट कैसे कम कर लें ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। अब इस एरा के बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वालिटी फोकस पे। अब क्वालिटी फोकस क्या कहता है? क्वालिटी फोकस कहता है जी आपको, क्वालिटी फोकस कहता है लीन प्रोडक्शन एरा 1980 टू 1995। अब ये वो एरा जिसमें आपने थोड़े से एडवांस कामों की तरफ चले गए। जैसे आपने इन्वेंट्री सिस्टम की बात की जाए तो वी मूव ऑन टू द जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। हमने कहा यार हमें ज़्यादा पैसे ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं है इन्वेंट्री करने के लिए, वी मस्ट मूव ऑन टू द JIT जस्ट इन टाइम, जैसी जरूरत पड़ेगी आप प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, मूव टूवर्ड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। हमने कहा यार क्यों ना हम अपनी जो प्रोडक्ट है इसके डिज़ाइन कंप्यूटर की हेल्प से बनाए जाएं, कंप्यूटर से एडेड डिज़ाइन बनाए जाए ताकि हमारे डिज़ाइन में परफेक्शन आ जाए। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की बात की कि अपने डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली सेव करना शुरू कर दिया। देन हमने बात की TQM की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, कि आप टोटल क्वालिटी को कैसे मैनेज करोगे। उससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएगी और क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी प्रोडक्ट की। फिर आपने इसी में बैल्ड्रिज अवार्ड की बात की। फिर आपने बात की एम्पावरमेंट की। एम्पावरमेंट क्या होती है? हमने कहा जी कि हम अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर कर दें, जिससे उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा और वो हमें क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देंगे। उसके बाद हमने कहा जी कैनवास की बात की कि कैनवास की एग्जांपल दी कि जिस तरह से कैनवास चलते हैं उस तरह से काम होना चाहिए। ये था हमारा क्वालिटी फोकस। अब क्वालिटी फोकस में हमने कॉस्ट फोकस की बात कर ली, क्वालिटी फोकस की बात कर ली आपने। नेक्स्ट आपके पास क्या रहता है जिसपे आजकल हम चल चल रहे हैं, दैट इज कस्टमाइजेशन फोकस। अब जब कस्टमाइजेशन की मैं बात करूंगा तो दैट इज अबाउट द मैस कस्टमाइजेशन एरा, जिसकी हम आजकल बात करते हैं। 1995 से 2010 तक या उससे ऑनवर्ड की बात करें तो उस एरा को कहा जाता है दैट इज अ मैस कस्टमाइजेशन एरा। अब इस एरा में आपने क्या क्या बात की? वी टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ? ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ये हुआ कि आप हर एक को हर मार्केट की एक्सेस मिल गई, आपका कस्टमर्स आपको ज़्यादा मिल गया, अब आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकते हो। सो व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन, हम इंटरनेशनल मार्केट तरफ जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम लोगों की प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड होगी और ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएंगे। फिर कहता है जी इंटरनेट और ई कॉमर्स। जब मैस कस्टमाइजेशन की तरफ गए तो आपका शॉपिंग का स्टाइल या दुनिया का स्टाइल चेंज हो गया। इंटरनेट आ गया, इंटरनेट ने लोगों को ई कॉमर्स की तरफ लगा दिया। जैसे अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, अमेजोन है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अपने स्टोर रजिस्टर करके जहाँ से चीज़ें परचेज कर सकते हो। अगर हम लोकल बात करें तो दराज.pk है, ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। फिर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी सिस्टम्स हैं आपके पास, आपने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। अब ईआरपी सिस्टम क्या होता है? वो आपको एक्सेस देता है, हर उस बंदे को उस रिक्वायर्ड चीज़ की जितनी उसको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी एक्सेस मिल जाती है। सो उससे भी काम आसान हो गया। देन वी टॉक अबाउट द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। हमने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दी, हमने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस बना दी जो लोगों को सिखा रही हैं। फिर हमने बात की इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की। हमने इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आपकी ग्लोबलाइजेशन के बाद इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस मिल गई सबको, तो उससे क्या फ़ायदा हो गया आपको? आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन हो गए।
आपको एक इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लेके जानी है तो वो इन इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर होगी, जो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं बिकेगी। फिर कहता है जी हाँ फाइनाइट स्केजुलिंग। फिर हमने स्केजुलिंग की बात करनी शुरू कर दी, हम चीज़ों को स्केड्यूल करने लग गए। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैस कस्टमाइजेशन, बिल्ड टू ऑर्डर। फिर हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात की कि यार क्यों ना मैं अपनी सप्लाई चेन को बेहतर कर लूँ, जिससे मेरे प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएंगे। फिर हमने बात की मैस कस्टमाइजेशन की। अब मैस कस्टमाइजेशन क्या होती है? अब आपने देखा होगा हर ब्रांड जो है ऑलमोस्ट एक जैसी चीज बेच रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। कस्टमाइज कैसे? अपने लोगो से, अपने डिजाइन से, फैब्रिक शायद सेम हो पर डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फिर बिल्ड टू ऑर्डर, हमने कहा कि यार क्यों ना हम स्पेशलाइज कंपनी बन जाए। स्पेशलाइज कंपनी कैसे बन सकते हैं? हमें जो ऑर्डर मिलेगा हम उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। सो वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बिल्ड टू ऑर्डर एक्टिविटी के, हमें जो मिले, जिस तरह का ऑर्डर मिले उस तरह की प्रोडक्ट बना के आगे सप्लाई कर दें। तो ये थे 3 एरा इन ऑपरेशन मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे, जैसे कॉस्ट फोकस, क्वालिटी फोकस और कस्टमाइजेशन फोकस। सो अब वापस आते हैं इस पे, हेरिटेज ऑफ ओएम पे। मींस जो हिस्ट्री थी उसकी, डिवीजन ऑफ लेबर, एडम स्मिथ ने बात की, चार्ल्स बेबेज ने बात की स्पेशलाइज्ड लेबर की, फिर स्टैंडर्ड पार्ट्स की बात की, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की कि हमें उसका करना चाहिए, साइंटिफिक चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेटेड असेंबली लाइंस की बात की, फोर्ड मोटर्स, फोर्ड एंड जॉनसन ने। देन गैंट चार्ट्स आ गए, फिर मोशन स्टडीज आ गए, फिर क्वालिटी कंट्रोल आ गया कि आपको इन सब पे। फिर आपके पास कंप्यूटर एडिट्स आ गए, सीपीएम पर्ट आ गया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आ गई, फिर आपके पास कंप्यूटर डिज़ाइन आ गए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ गए। फिर 1980 में हमारे पास ब्राजील क्वालिटी अवार्ड्स आ गए। फिर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग 1990 में आ गई, 1992 में ग्लोबलाइजेशन की तरफ चले गए, 1995 में। सो अब वो सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है वो अब इन स्लाइड्स में आपको नज़र आ रहा होगा। सो ये आप लोग खुद पढ़ लोगे, बिकॉज मैं सारा कुछ पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनमें कुछ भी नहीं पढ़ा। अब हम देखते हैं कि न्यू चैलेंजेस क्या हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट को, या ऑपरेशंस मैनेजर को जो नए चैलेंजेस हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था और अब क्या होता है? पहले हम लोकल नेशनल फोकस की बात करते थे, जिसमें अब हम बात करते हैं ग्लोबल फोकस की। पहले हम बात करते हैं बैच शिपमेंट्स होनी चाहिए। फिर हम उधर से आगे जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम में, जेआईटी में। फिर हम आगे जी लो बिड परचेजिंग में। पहले हम बात करते थे कि जी ऑप्शन होगा, बिडिंग करने हैं, जो सस्ती चीज़ मिले खरीद के रख लें, चाहे हमें उसकी भी ज़रूरत है कि नहीं है, बट और वी आर गेटिंग इट इन चीप प्राइस, सो हम उसको परचेज करके रख लेते हैं। लेकिन फिर हम वहाँ से निकले, हम आगे सप्लाई चेन पार्टनरिंग में, कि हमने सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स करना शुरू कर दी। फिर लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से निकले, हम रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अलाइंसेस में आ गए, कि हमने प्रोडक्ट अलाइंसेस कैसे करने से प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारी फास्ट हो जाए। फिर स्टैंड प्रोडक्ट से हम आगे मैस कस्टमाइजेशन पे। अब हम मेरी प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम मैस कस्टमाइज कर रहे हैं। मीन्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, प्रोडक्ट को डिज़ाइन और उसको मॉडिफाई करके दिया जा रहा है। फिर आप जॉब स्पेशलाइजेशन से हम लोग निकले, हम एम्पावर एम्प्लॉयज़ और टीम्स में आगे। हमने कहा नहीं यार, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर कर देना चाहिए। जब टीम्स की बात करें तो हमने कहा नहीं यार, हमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स बना लेनी चाहिए। अब वो टीम्स क्या करती हैं? उन टीम्स में हर एक फील्ड का एक्सपर्ट बंदा हमने ऐड कर दिया। Now let's move towards another topic, that is characteristics of goods, और उसके बाद हम पढ़ेंगे characteristics of service। गुड्स के characteristics क्या क्या होते हैं? पहली बात, गुड्स ऐसी चीज़ होती है जिसको हम देख सकें, छू सकें, फील कर सकें, हाथ लगा सकें। सो पहली चीज़ क्या कहेगा, कहता है जी गुड्स क्या हैं? दे आर टेंजिबल प्रोडक्ट्स। गुड्स आपकी क्या हैं? गुड्स आपकी टेंजिबल प्रोडक्ट हैं। अब टेंजिबल प्रोडक्ट क्या कौन सी होती है? ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसको आप टच कर सको, जिसको आप फील कर सको, जिसको आप हाथ लगा सको। टेंजिबल प्रोडक्ट होती है, उसे गुड कहा जाता है। फिर कहते हैं हर प्रोडक्ट की कंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन होती है, जैसे आयरन है, कैमरा है, कार है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन हैं, इनके अपने अपने फीचर्स हैं, अपने अपने सिस्टम्स हैं, जो सबके डिफरेंट है, एक दूसरे से मैच नहीं करते। देन इट सेज प्रोडक्शन ह्यूजली सेपरेट फ्रॉम कंजप्शन। अब प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा जाता है कि जहाँ प्रोडक्ट बनती है
वहाँ पे कंज्यूम नहीं होती है। अब कंज्यूम हमेशा, जैसे हम कुछ चीज़ की बात कर लें, वो एक फैक्ट्री में बनी, फैक्ट्री से स्टोर पे आई बिकने के लिए, स्टोर से एक होलसेलर के पास आई या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई, डिस्ट्रीब्यूटर से एक होलसेलर के पास गई, होलसेलर पर रिटेलर के पास गई, रिटेलर से एंड स्टोर पे आई, वहाँ से हमने परचेज की। तो वो क्या है, जहाँ बनी वहाँ पे कंज्यूम नहीं, बनती कहीं और है, कंज्यूम कहीं और होती है। फिर कहता है कैन बी इन्वेंट्राइड, आप प्रोडक्ट को इन्वेंट्री कर सकते हैं, हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसकी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। फिर अब इसमें कहते हैं जब प्रोडक्शन है आपकी, उसमें लोग कस्टमर इंटरेक्शन है, कस्टमर इंटरेक्ट करते हैं हमेशा एंड फाइनल प्रोडक्ट में आके, जब वो खरीदने का डिसीजन कर रहा होता है या प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज की बात की जाए, तो सर्विसेज कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सर्विस नज़र नहीं आती है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर, कंसल्टेंसी फर्म्स, ये आपको सर्विस देते हैं, आपको नज़र नहीं आ रही, आपको इनटेंजिबल चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। फिर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम, अब सर्विस का हम कहते हैं जहाँ पे वो बनती है वहाँ पे वो कंज्यूम हो जाती है। फिर कहता है सर्विसेज आर ऑफन यूनिक, दैट्स ट्रू। अब सर्विस, जैसे एक डॉक्टर है जनरल प्रैक्टिशनर है, हम उसके पास जाते हैं, हम में से कोई, शायद मैं उसके पास गला ख़राब के लिए गया हूँ, आप सर दर्द के लिए गए हो, कोई बुखार के लिए गया है, कोई पेट दर्द के लिए गया है, तो ये सारे ओपन यूनिक चीज़ें हैं। फिर कहता है हाई कस्टमर इंटरेक्शन, सर्विसेज में कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वेरी हाई। वो किस तरह से हाई होता है, वो इस तरह से हाई होता है कि जहाँ पे चीज़ बन रही होती है वहाँ पे ही, क्या कहते हैं, कस्टमर भी वहीं अवेलेबल होता है, तो वहीं रन टाइम पे आप उनसे इंटीग्रेट कर रहे हो, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। फिर कहता है इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन है। अब सर्विस की जो डेफिनेशन, दैट्स नॉट द कंसिस्टेंट, दैट्स नॉट द फिक्स फॉर एवरीवन, क्योंकि हर बंदा सर्विस को अपने अकॉर्डिंगली यूज कर रहा है। फिर सर्विसेज ऑफन नॉलेज बेस्ड होती हैं, दैट्स ट्रू, सर्विसेज जितनी भी होनी चाहिए नॉलेज बेस्ड है। फिर कहता है जी फ्रीक्वेंटली डिस्पर्स्ड, आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो फ्रीक्वेंटली डिस्पर्स की जा सकती हैं। अब बता रहा है आपकी इंडस्ट्री एंड सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन, बता रहा है जी इन योर जीडीपी कितना है। दैट इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज, के कंट्रीज में सबसे ज़्यादा किसका कितना डिफरेंस है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एज पर द मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर। अब कुछ हम डिफरेंशिएशंस की बात करेंगे। कहता है जी कि गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंशिएशंस क्या हैं या इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ सर्विसेज क्या हैं। अब पहली चीज़, सर्विसेज जो हैं वो टेंजेबल हैं, और सॉरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो, गुड्स जो है टेंजेबल हैं, और जो सर्विसेज हैं वो इनटेंजेबल हैं। अब हम बात करते हैं, वन बाय वन को डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स का हमें कहा जाता है कैन बी रीसोल्ड, और सर्विसेज में कहता है रीसेलिंग इज अनयूजुअल, आप सर्विस को रीसेल नहीं कर सकते, शोल्ड नहीं कर सकते आगे। और प्रोडक्ट एज जैसे हमने पहले बात की थी, कैन बी इन्वेंटरीड, आप इसको स्टोर कर सकते हो, और सर्विस कहता है के बारे में कहता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेंटरी। फिर कहता है सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी मयरेबल है, क्वालिटी डिफिकल्ट टू मयर है। अगर आप सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी को मेयर करना बहुत डिफिकल्ट काम है। फिर कहता है सेलिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ सर्विस। और सी बात है कि हम अगर प्रोडक्ट की बात करें, गुड की बात करें, तो उसकी जो बेचना है वो प्रोडक्शन से अलग है। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करें तो सेलिंग जो है वो सर्विस का पार्ट है। फिर कहता है प्रोडक्ट आपकी ट्रांसपोर्टेबल है, सर्विस इज नॉट ट्रांसपोर्टेबल। ऑब्वियसली बात है, प्रोवाइडर नॉट प्रोडक्ट इज ऑफन ट्रांसफरेबल। सो कहता है साइट ऑफ सेलिब्रिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉस्ट, आपकी जो साइट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी कॉस्ट को वैल्यूएट करने में। तो फिर कहता है साइट ऑफ फैसिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर कांटेक्ट, आपकी सर्विस में बात की जाए, क्योंकि कस्टमर इंटरेक्शन ज़्यादा है, जहाँ बननी है वहीं कंज्यूम होनी है, तो वहाँ पे कस्टमर इंटरेक्शन 100% हो जाता है। उसके लिए आपकी ज़रूरी है कि आपकी फैसिलिटी कस्टमर्स के लिए कैसी है। देन इट सेज इट्स ऑफन वेरी इजी टू ऑटोमेट, आप गुड्स को इजीली ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकते हो, मीन्स कंप्यूटर उनको बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑन द अदर साइड बात करें, सर्विसेज को ऑटोमेशन लेके जाना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, हो सकता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड रिस्की। फिर कहता है रेवेन्यू जनरेटेड प्राइमरीली फ्रॉम टेंजेबल प्रोडक्ट। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम कुछ की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच के आएगा। अगर हम सर्विसेज बात करें, रेवेन्यू जनरेटेड प्राइमरी फ्रॉम द इंटेंजिबल सर्विस, आप रेवेन्यू यहाँ पे कहाँ से जनरेट करते हो, इंटेंजिबल एक्टिविटीज से। फिर बात कर रहा है जी गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर बात की जाए
परसेंटेज प्रोडक्ट दैट इज गुड, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट दैट इज सर्विसेज में तो कौन सी कहाँ पे फॉल कर रही है वो देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर इंस्टॉल, कारपेट, फास्ट फूड मील, रेस्टोरेंट मील, ऑटो, हॉस्पिटल केयर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टीचिंग और काउंसलिंग। अब इसमें देखो बड़ा इजी है हमारे डिफरेंशिएट करना कि गुड्स कौन सी हैं, सर्विसेज कौन सी हैं। ऑटोमोबाइल क्या बेच रहा है? गुड्स बेच रहा है। कंप्यूटर बेच रहा है तो गुड है। इंस्टॉल्ड कारपेटिंग, ये भी बंदा आके प्रोडक्ट भी देगा, सर्विस भी देगा। फास्ट फूड मील अगर देखा जाए ये सर्विस भी है प्रोडक्ट भी है। रेस्टोरेंट मील और ऑटो रिपेयर्स। अब रेस्टोरेंट मील्स क्या है? ये भी देखो प्रोडक्ट भी है सर्विस भी है। हॉस्पिटल केयर इज प्योरली a service, advertising agency and restaurant management is a service, consulting service, teaching is a service, counseling is a service। अब बात कर रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी कम है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन की बात कर रहा है, वो भी उसमें आप ये देख सकते हो कि उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट लेफ्ट स्केल में वापस कम आ रही है। फिर हम बात करें जी सबसे इकोनॉमी की। यूजुअली ज़्यादातर अब कंपनी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज हैं बस सर्विसेज इकोनॉमीज की तरफ जा चुकी हैं। जैसे बात की यूनाइटेड स्टेट्स 80% आज सर्विस इकोनॉमी। अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन किस किस सेक्टर में कितनी कितनी है। अगर हम बात करें एजुकेशन, लीगल, मेडिकल एंड अदर की, दैट इज 25%, देन ट्रेड और रिटेल होलसेल 15% और ड्यूटी ट्रांसपोर्ट इज 5। फिर बात कर रहा है जी आपकी ईच सेकंड प्रोफेशनल एंड बस बिजनेस सर्विसेज 10%। सो इट मूव ऑन, इट्स जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। So the next topic is like our new trends in operation environment। हमने पहले बात की, पहले हम ये वही दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पहले हम बात कर लोकल नेशनल फोकस पे, अब हम बात करते हैं ग्लोबल फोकस पे, मूविंग प्रोडक्शन ऑफशोर पे। पहले हम बैच बैच लार्ज शिपमेंट्स की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जस्ट इन टाइम फार्म सिस्टम की। पहले हम बात करते हैं लो बिड परचेजिंग की, हम बात करते हैं सप्लाई चेन क्लब। बेसिकली ये था 10 डिसीजंस जो हैं यहाँ पे। अब आपको पास्ट में क्या होता था, फ्यूचर में बता रहा है कैसे हो रहा है और उनके कॉजेज बता रहा है। ठीक हो गया। सो न्यू ट्रेंड्स इन ऑपरेशन में कहाँ कहाँ पे आए। पहले बात कर रहे हैं ग्लोबल फोकस पे, ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन के बाद फोकस शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्लोबल थिंग। देन JIT परफॉर्मेंस आ गई, दिस इन टाइम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ, फॉर बायर एंड द सेलर एज वेल। सप्लाई चेन पार्टनरिंग आ गई, रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मास कस्टमाइजेशन, एम्पावर्ड एम्प्लॉइज, एनवायरमेंटली सेंसिटिव प्रोडक्शन क्योंकि हम एनवायरमेंट से बात करने लगे, और द लास्ट वन इज एथिक्स एंड बिजनेस। जो नेक्स्ट चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, ऐसा वो द प्रोडक्टिविटी चैलेंज। हमने बात करनी सबसे पहले प्रोडक्टिविटी होती क्या है। बेसिकली कहता है प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट्स। अब आउटपुट में क्या आता है हमें पता है, गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी, दैट्स डिवाइडेड बाय द इनपुट। अब इनपुट में क्या है, रिसोर्सेज जो हम इनपुट कर रहे हैं सच एज लेबर एंड कैपिटल। अब ऑब्वियसली बात है अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ इनपुट करना पड़ेगा, उसके बाद मेरी आउटपुट निकलेगी। अब वो जो आउटपुट निकलेगी किसी ना किसी फॉर्मेट में होगी, या वो गुड्स होंगी या वो सर्विसेज होंगी। अब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर गुड्स की, कि अगर गुड्स होंगी तो मुझे उसके लिए इनपुट क्या करना पड़ेगा, मैं लेबर अपने रिसोर्सेज डालूंगा। अब रिसोर्सेज मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, लेबर हो सकती है, कैपिटल हो सकता है, उसके बाद रॉ मटेरियल हो सकता है, बहुत सी चीज़ें इसमें आपकी आ जाती हैं। अब पर्पस क्या है, द पर्पस इज टू ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी जितनी ही बेहतर होगी उतनी ही इवेंचुअली ज़्यादा आपकी, जितनी ही ज़्यादा बेहतर होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होंगे, उतनी आपके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब इसमें मैं इम्पॉर्टेंट नोट कहता है, प्रोडक्शन इज़ अ मेजर ऑफ आउटपुट ओनली एंड नॉट अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन क्या है, वो आपकी मेजर सिर्फ आउटपुट की है, वो आपकी एफिशिएंसी को मेजर नहीं करती है कि प्रोडक्ट कितनी एफिशिएंट बन रही है, कितनी स्मार्ट प्रोडक्ट बन रही है जिसमें वेस्टेज हमारी कम से कम आ रही है। अब बात करते हैं जी इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने पहले बताया कि हम इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम कुछ इनपुट करते हैं उसमें प्रोसेस होता है फिर वो आउटपुट निकलती है। हमें इनपुट पता चल गया क्या क्या होता है, हमें आउटपुट के पता चल गया क्या क्या होता है।
तो बीच वाला एलिमेंट रह गया प्रोसेस में क्या हो सकता है, कहता है द यूएस इकोनॉमिक सिस्टम ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट्स एट अबाउट एन एनुअल 2.5% increase in productivity per year. The productivity increase is the result of a mix of capital, लेबर एंड मैनेजमेंट। कहता है ये तीन चीज़ों का मिक्सचर है, कैपिटल, लेबर, मैनेजमेंट का, जिससे प्रोसेस हर साल बेहतर करके अपनी प्रोडक्टिविटी को हर साल 2.5% बेहतर कर लेते हैं। देखते हैं हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। एक केस स्टडी गिवन है हमारे पास, एक कॉफ़ी शॉप की एग्जांपल है। अब ये कॉफ़ी शॉप कौन सी है? स्टारबक्स की एग्जांपल है। इसको पढ़ते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं आगे, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो वो आपको मैं बताऊंगा, फिर आप करते जाइएगा। So it says a team of 10 analysts currently look for ways to save time, some improvements. अब वो क्या थे, उन्होंने एक एनालिस्ट की टीम थी जो बाबर कंटिन्यूसली देखती थी कि हम स्टारबक्स में रहते हुए लोगों का उनका जो सर्विंग टाइम है कैसे बेहतर कर सकते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अब उन्होंने कुछ स्टेप्स किए जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। वो क्या थे हम वो देखते हैं। पहला स्टेप था जी, स्टॉप रिक्वायरिंग सिग्नेचर ऑन क्रेडिट कार्ड परचेज अंडर $25। अगर जो $25 से कम की परचेज है उससे आपने क्या करें, क्रेडिट कार्ड सिग्नेचर्स की लेना मैंडेटरी वाली जो है वो रिस्ट्रिक्शन या रूल ख़त्म कर दें। अब वो क्या करेगा, सेव 8 सेकेंड्स पर ट्रांजेक्शन। अब उससे इवेंचुअली फ़ायदा क्या होगा, उससे कहता है जी आपके 8 सेकेंड्स बच रहे हैं हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। सो चेंज द साइज ऑफ द आइस कूप। अब आइस क्यूब का साइज चेंज कर दें आप, क्योंकि आप अभी छोटा रखते हैं तो वो आपको बार बार उसमें ज़्यादा डालना पड़ता है। इट्स से 14 सेकेंड्स पर ड्रिंक। अब अगर आपने आइस क्यूब का साइज चेंज कर दिया तो वो भी आपको टाइम बचा रहा है। फिर कहता है न्यू एस्प्रेसो मशीन्स लगवाएं जो कि 10 सेकेंड्स पर शॉट आपके बचाएंगी 12 सेकेंड। अब इन सबको अगर एग्रीगेट कर लिया जाए तो 34 सेकेंड्स बनते हैं एक ऑर्डर सर्विंग में जो हम उसको सेव कर रहे हैं। Operation improvement have helped Starbucks increase yearly revenue per outlet by $200,000 to $940,000 in 6 years. Productivity has improved by 27% or about 5.5% per year. Productivity कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको मैंने बता दिया पहले। It's a unit produced divided by input use. Measure of process improvement represents output relative to input. Only through productivity increase can our standard of living improve. That's true. अगर हम productivity बेहतर कर सकते हैं तो उससे हम अपना standard of living भी बेहतर कर सकेंगे। इसकी कैलकुलेशंस बता रहा है सिंपल, हमने कैसे कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस है। यूनिट प्रोड्यूस और लेबर आवर्स यूज आपने डालनी है। अगर आप लेबर प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो तो वो क्या आ गई, 4 यूनिट्स पर लेबर आवर, वन रिसोर्स इनपुट इज इक्वल टू सिंगल इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी। अब इसमें आपका रिसोर्स क्या आता, सिर्फ लेबर की बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड द लेबर प्रोडक्टिविटी। इसको हम सिंगल इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आगे हम बात फैक्टर प्रोडक्टिविटी की। मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में क्या आता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें आउटपुट तो वही रहता है पर जो इनपुट है वो चेंज हो जाता है। अब इनपुट में क्या क्या चेंज हो जाता है, लेबर, मटेरियल, एनर्जी, कैपिटल और मिसलेनियस चीज़ें ऐड हो जाती हैं। फिर कहता है ऑल्सो नॉन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब इसमें आपको मल्टीपल भी कह सकते हो, इसको आप टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हो। आउटपुट एंड इनपुट्स आर ऑफन एक्सप्रेस इन डॉलर्स। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, सो द वैल्यूज आर विल बी इन द डॉलर्स, ठीक है। अब इसमें आप देखो मल्टीपल रिसोर्स इनपुट किया आपने और आपको मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब ये एग्जांपल है एक हमारे पास जी, ए स्टाफ ऑफ 4 वर्कर्स, दे वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे, पेरोल कॉस्ट है $640, 8 टाइटल्स पर डे बना रहे हैं और ओवरहेड है 400 अ डे। तो ओल्ड लेबर प्रोडक्टिविटी की मैथड निकाल लें। अगर हम 8 टाइटल्स पर डे हैं और 32.25 टाइटल्स पर लेबर आर बन रही है। सो अब बात कर रहे हैं जी, हमने ओल्ड सिस्टम की बात कर ली। अब न्यू सिस्टम में बताते हैं 14 टाइटल्स पर डे, ओवरहेड इज 800 पर डे। ओल्ड लेबर प्रोडक्टिविटी आप इसे करो 0.25, न्यू लेबर प्रोडक्टिविटी आप देखो आपकी क्या आ गई, 14 टाइटल्स पर डे हैं और 32 लेबर आवर्स हुई हैं। आपकी क्या है, इससे प्रोडक्शन बढ़ गई है, ठीक है। अब ओबियसली बात है प्रोडक्शन, ज़्यादा सैलरीज बढ़ गई ना आपकी, तो वो 0.4375 टाइटल्स पर लेबर आ गया आप। अब अगर हम देखें इसमें फर्दर देखें, पेरोल कॉस्ट को देख लिया जाए अगर, तो ओल्ड मल्टा फैक्टर प्रोडक्टिविटी निकाल लें 8 टाइल्स पर डे। और क्या था हमारे पास, उसकी एक चीज़ हम लेबर की लगा रहे हैं सैलरी, और दूसरा हम ओवरहेड लगा रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, टाइटल्स पर डॉलर। फैक्टर में देख लेते हैं तो इसमें रिमेन सेम, वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 0.097 टाइटल्स आ डॉलर आपको कॉस्ट का, ठीक है जी। अब इसमें
आपकी मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो देख लेते हैं। कहता है जी क्वालिटी में चेंज वाइल द क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी क्वालिटी चेंज हो सकती है अगर आपके इनपुट एंड आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहें, फिर भी कैसे? प्रोसेस से, आपकी एफिशिएंसी से। अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा? क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। अगर हमारी एफिशिएंसी ख़राब होगी है तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। फिर एक्सटर्नल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, मेक एन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। आपका एक्सटर्नल एलिमेंट है, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ भी जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम भी हो जाती है। फिर कहता है प्रिसाइज यूनिट से मेजर में भी लैकिंग। आपके जितने प्रिसाइज यूनिट्स बढ़ रहे हैं उससे इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। प्रोडक्टिविटी वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। तो हमने पहले बात की थी थ्री वेरिएबल्स। अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन के तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, पर तीन मेन है जो हम डिस्कस करेंगे। लैंड, लेबर और मैनेजमेंट। लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट। अब लेबर में क्या है? कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 10% ऑफ द एनुअल इंक्रीज। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 38% और मैनेजमेंट कहती है 52% एनुअल इंक्रीज में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। अगर मैं लेबर बढ़ा लूँ तो उससे क्या होगा? 10% फायदा होगा। अगर हम कैपिटल बढ़ा लें उससे क्या होगा? 38% बेनिफिट होगा। अगर हम मैनेजमेंट बेहतर कर लें तो इवेंचुअली वी हैव अ 52% इंक्रीज इन एनुअल। फिर कहता है की वेरिएबल फॉर इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी में क्या क्या है? बेसिक एजुकेशन अप्रोप्रिएट फॉर द लेबर फोर्स। आप अपने लेबर फोर्स को प्रॉपर्ली एजुकेट करो, उनकी ट्रेनिंग्स करवाओ, उनको प्रैक्टिकल करवाओ जिससे वो बेहतर हो जाए। उनकी डाइट का ख्याल रखो। सोशल ओवरहेड दैट मेक्स लेबर अवेलेबल। उनके सोशल ओवरहेड्स का ख्याल रखो। मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्किल्स इन द मैच ऑफ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कंटिन्यूसली करता रहे। लेबर स्किल्स का एक डायग्राम आ रहा है, उसको आ रहा है। फिर सर्विस प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि जी सर्विस प्रोडक्टिविटी में क्या क्या होता है। अगर देखा जाए टिपिकली लेबर इंटेंसिव जॉब्स होती हैं, ऑब्वियसली बहुत सर्विसेज आर लेबर इंटेंसिव। हमने पहले ही बात की, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट्स हैं वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, बट सर्विसेज जो हैं वो लेबर इंटेंसिव है। फ्रिक्वेंटली फोकस ऑन यूनिक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स और डिजायर्स। ये भी बात ठीक है कि ये इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और उसके डिज़ायर्स डिफरेंट। ओपन इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्म बाय प्रोफेशनल सर्विसेज इज इंटेलेक्चुअल टास्क जो प्रोफेशनल परफॉर्म करते हैं। लेबर में कोई भी जो देख के काम कर सकता है, सर्विसेज में ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू प्रोफेशनल टू गिव द पर्टिकुलर सर्विस। ऑफन डिफिकल्ट टू मैकेनाइज, दैट्स ट्रू। ऑफन डिफिकल्ट टू वैल्यू, बात कर चुके हैं। अभी एग्जांपल है सर्विस टेको बेल की एग्जांपल है, तो इसको इसमें भी सर्विस पर। तो अब हम एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे। चैलेंजेस फेसिंग क्या क्या ऑपरेशन मैनेजर को जो आ रहे हैं वो क्या हैं, हम बता देते हैं। डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग सेफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ऑपरेशन मैनेजर्स के लिए क्या आता है कि जिनकी प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी सेफ होनी चाहिए और ऐसा ना हो यूज़र के लिए प्रोडक्ट्स हार्मफुल बना रहे हैं। देन कहता है जी मेंटेनिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट साफ और हेल्दी रहे वर्क फोर्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एथिकल वैल्यूज़ हैं हमारी। देन प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्क प्लेस, आपकी वर्क प्लेस को सेफ बनाना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि लोग हमारे पास काम करने के लिए सिक्योर फील करें। ऑनरिंग कम्युनिटी एंड कमिटमेंट्स, हमने अपनी कमिटमेंट्स और कम्युनिटी को ऑनर करना होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम द ethics and social responsibility. So here comes the end of the chapter. So I know लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन टॉपिक्स अच्छे थे कि हम इसको स्प्लिट करते तो फिर वो सही तरह से स्प्लिट होना नहीं था। अब विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर हो थोड़ा सा सी कन्वर्सेशन में छोटा हो, ताकि आप लोगों को आसानी रहे पढ़ने में। सो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इन केस अगर आपके क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो फील फ्री टू आस्क मी।